जी बिल्कुल, वो तो मेरा हमेशा रहता ही है कि जब भी टाइम मिले आई शुड जॉइन, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग जो नॉलेज देते हैं उससे डेफिनेटली फायदा मिलता ही है, कहीं ना कहीं सीखने को मिलता ही है कुछ ना कुछ। Hello and welcome to another episode of Film Interviews. Today we have with us Dr. Amit Agrawal, and he is a veteran in this field. He has a lot of experience. He finished his MBBS and MB in pediatrics. After that, he has moved to Bareilly and he has started his hospital. And he has around 40-bedded hospital which is running very well. And he's children are all doctors. So, congratulations, sir. Hall of Fame. Welcome to this edition. What was the story behind becoming a pediatrician? Tell me about that. Since the very early years of my life, my dream was there to become a doctor. And I have done my schooling from Birla Vidya Mandir, Nainital. And even in my school, all the teachers and all my friends they call me a doctor. Doctor आ गया, doctor आ गया. My whole of my intention was there that I will become a doctor. Okay. So after completion of my 12th from Birla Vidya Mandir, Nainital, then I shifted to Agra. There I've done coaching for a year or so. And fortunately, I was selected in Agra Medical College only. At the time, CPMT, Combined Medical Test of UP was there. So through that test, I was selected and I joined Agra Medical College. And with God's grace, I was among the top few students of my batch. And I've completed my MBBS in the first go. Then at that time, there was no competition for PG. So we were awarded only on the MBBS merit marks. The PG was awarded. So initially, my first choice was orthopedics. I wanted to join orthopedics, but many of my seniors and my friends, they just brainwashed me in the night before joining, and they tell me, "No, you have to go in pediatrics." So ultimately, I joined pediatrics, but I never regretted my decision. I'm doing very well in pediatrics, and I love to treat my children. I love to see the relief and the comfort when a child is saved on the faces of their parents and grandparents. They come with a lot of hope that their child will be saved. And when I passed my MD, he just tell me one thing, कि, Amit, never go for money. Whomsoever you are treating, think that if my child is suffering with this, then how will I treat him? Great. If you follow this principle, you will never look back in your life. So it is still I am remembering this, and I try to do all my best which I can do with my patients. These are one or two good Yes, words of wisdom which take you through your life. definitely. I am very clean and very straightforward person. I never do cheating. I never like many offers. Many people try to misguide me to do this, to do that. But I always say, देखो, patient is first. Patient की safety and patient का ठीक होना सबसे important है. पैसा आएगा नहीं आएगा बात की बात है. बहुत सी बार होता है, गरीब पेशेंट है. अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने एक लेबरर का बच्चा PM grade 4 with severe respiratory distress. Child was looking that it will not survive, but I have admitted him, treated him for 10 days. I think half the payment was not given by them, but okay. चलो बच्चा बच गया, ठीक हो गया. You go, कोई बात नहीं. So we do like this, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए मेरा तो सोचना यही है कि आप किसी के साथ भी चीटिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो योर ग्रोथ में भी स्लो बट इट विल बी परमानेंट. आपके खाते में गुडनेस के पॉइंट जुड़ गए. जी बस बिल्कुल आपके खाते में गुडनेस के पॉइंट जुड़ गए और वो हमेशा रहेंगे. वो कभी डिलीट कोई कर नहीं सकता उनको. कितनी कोशिश कर ले आपको डिफेम नहीं कर सकता कोई. ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ. एक फैमिली के 3 बच्चे थे, तीनों को एंसेफ्लाइटिस हुई. बच्चा उसका एडमिट हुआ, उसकी डेथ हो गई. दूसरा एडमिट हुआ, उसकी भी डेथ हो गई. वो तीसरे को लेके आया. मैंने मना कर दिया, यार तेरे 2 बच्चे मेरे पास मर गए, मैं नहीं रखूंगा इसको. वो कह रहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत ही नहीं है. मेरे बच्चों की बीमारी थी, नहीं ठीक हो पाई. अगर मुझे शिकायत होती तो मैं तीसरे बच्चे को भी आपके पास क्यों लाता. मैं तो आप ही से इलाज कराऊंगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ आपसे. अब पेशेंट से ज्यादा मुझे टेंशन थी कि ये बच्चा इसका कुछ ना हो जाए. एग्जैक्टली. भगवान की दया से बच गया. मैं काफी लोगों से डील कर चुका हूँ. मतलब आई एम डूइंग फाइन इन माय जॉब. जब आपने हॉस्पिटल बनाया है, जो अभी आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जी, तो बनाते वक्त आपको क्या क्या स्टेप रहे होंगे और कैसे कैसे आपने बनाया? एक ही बार में बनाया या फिर धीरे धीरे बनाया? क्या उसकी हॉस्पिटल बनाया
तो देखिए, मतलब मैंने जो भी कुछ किया है फ्रॉम द डस्ट अपने अपने पैसे से ही किया है। शुरू में पैसे की शॉर्टेज थी बहुत, तो कुछ पैसा अपनी फैमिली से, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ रिश्तेदारों से उधार लेके हमने जमीन ली, फिर बैंक से लोन लेके हमने इसको शुरू किया। इनिशियली हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बना पाए थे इस अस्पताल का। देन ग्रेजुअली उसको शुरू करने के बाद ग्रेजुअली हम ऐड करते गए। आज ये हमारा 4 स्टोरीड हॉस्पिटल है विद बेसमेंट एंड रेजिडेंस इज आल्सो देयर ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। Okay. तो करीब 8-10 साल लगे मुझे टोटल सब कुछ ये पूरा करने में। धीरे-धीरे कमाते गए, लगाते गए इसी में। एमडी के बाद आपने कोई जॉब वगैरह की क्या? मैंने इनिशियली गवर्नमेंट जॉब जॉइन किया था, पर 3-4 महीने से ज़्यादा मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो वहाँ पर बार-बार इंस्पेक्शन हो रहा है जी, कोई आ रहा है, यहाँ आइए, वहाँ जाइए, और मैं उसको कर नहीं पाया उसके बाद। आई लेफ्ट आफ्टर 3-4 मंथ्स। आपके बच्चे सब डॉक्टर हैं, डॉटर एंड सन, उनके बारे में बताइए। हाँ, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों डॉक्टर हैं और दोनों का मन था मेडिकल में जाने का। ओके। तो बेटी बड़ी है, ऑल्दो वो बहुत ही टैलेंटेड है, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हमने दोनों को प्राइवेट से कराया है। बिकॉज़ ऑफ ये आजकल जो सब इतना रिजर्वेशन वगैरह पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से सीटें जनरल लोगों के लिए बहुत फ़र्क पड़ गया है। जी। तो बच्चे दोनों मेरे प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। बेटी जो है उसने एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज है बरेली में, जी। यहीं से किया था उसने, और शी वाज़ टॉपर इन द एमबीबीएस, गोल्ड मेडलिस्ट थी। यहाँ के 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं बरेली में, तीनों की गोल्ड मेडलिस्ट थी वो उस समय। अच्छा। देन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में उसने किया, उसके बाद उसको टाटा में एसआरशिप मिल गई थी। 2 साल उसने टाटा में काम किया, बॉम्बे। ऑल्दो टाटा वाले आमतौर पे बाहर के लोगों को नहीं देते हैं। उनका भी एक टेस्ट था, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, उसमें उसने क्लियर किया और उसके नंबर उनके अपने इंटरनल कैंडिडेट से ज़्यादा थे। तो फिर उन्होंने उसको दिया, एंड शी वाज़ ऑन अ वेरी। उसके बाद फिर उसने 2 साल करने के बाद फिर वो वापस आ गई थी। फिर यहाँ उसकी हमने मैरिज की, दिल्ली में रहे वो लोग। 1 डेढ़ साल वो लोग शादी के बाद दिल्ली रहे, देन उसके हस्बैंड को ये मिल गया था। 3 साल से अभी ये लोग यूएसए में हैं। अब जुलाई में कंप्लीट होगा तो दे विल कम बैक। उनका वहाँ रहने का मूड नहीं है, दे विल कम बैक टू इंडिया, दे वांट टू स्टे इन इंडिया ओनली। अच्छा। और बेटे ने मेरे इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है एमबीबीएस, एंड नाउ ही इज इन उदयपुर, ओके। पीआईएमएस उदयपुर में वो एमडी कर रहा है। इसलिए लास्ट ईयर है उसका, अब इस ईयर एंड में नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा उसका। यूजुअली सर डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनना पसंद नहीं करते, आपने इनको क्या सिखाया कि ये डॉक्टर बनने के लिए इंटरेस्टेड है? या तो आपने कुछ देखा, नहीं, मैंने कुछ नहीं आपने सिखाया। या तो आजकल आपने कुछ आपकी बात देखा। ठीक है, आजकल अधिकतर बच्चे जो है वो मतलब मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सर्जन में लोग हैं जिनके बच्चे डॉक्टर नहीं बने, लेकिन मैनी ऑफ देम आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजंस। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो भले ही नहीं आए मेडिकल में, अब वो दूसरी ब्रांचेस में कर रहे हैं, लेकिन वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मेडिकल में जाते तो ज्यादा अच्छा था। मेडिकल में देखिए टफ है, स्टेबिलिटी रहती पढ़ाई है। बहुत लंबी है, टफ है, मेहनत बहुत है, लेकिन रिवार्ड्स भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है, और हम लोग के साथ तो फायदा है कि भाई आप जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, हॉस्पिटल है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी सब बना इन्होंने बनाया स्पिन बोर्ड तैयार है। जीरो से शुरू नहीं करना तो यू पड़ेगा। कैन है, आप कभी भी जो है आगे बढ़ने का मौका आपका खत्म नहीं होगा। जी। अभी आपके साथ कितने तो डॉक्टर हैं सर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में देखिए, मतलब फुल टाइम तो मैं ही वर्क करता हूँ, बाकी मेरे पास सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ये लोग ऑन कॉल आते हैं। अच्छा अच्छा। पेशेंट होता है तो दे कम, दे डू द वर्क एंड दे गो। वेरी गुड। और सर मैम भी डॉक्टर है क्या? ये हम देख रहे हैं कोई। जी वाइफ नहीं, वाइफ मेरी डॉक्टर नहीं है, शी इज हाउस वाइफ, बट शी लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। ओके। हाउ इम्पोर्टेंट रोल दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वो भी काफी दैट इज important ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। वो हाँ, शी इज द बैकबोन ऑफ द होल ड्रामा, बिकॉज वो ना हो तो आधी चीजें खराब हो जाए। है। आप हाँ हाँ डॉक्टर ब्रेन अकेडमी से कब से जुड़े सर? मैं आपकी एकेडमी से सिंस बिगनिंग, जब से आपने शुरू किया, मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ आपसे। हाउ हैज आपका मैं बीन? शायद पहले इनिशियल फ्यू मेंबर्स में से मैं था आपका। क्या और कहना? डायमंड में भी जिस दिन आपने अनाउंस किया था फर्स्ट, उसमें ही मैंने ज्वाइन किया डायमंड भी आपका। और ये जरूर है कि मैं बहुत ज्यादा आपके इनको लॉग इन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अक्सर थोड़ा टाइमिंग्स प्रैक्टिस के थोड़ा ऐसे रहते हैं ना, रात को 9-10 बजे से पहले यूजुअली फ्री नहीं होते। जी जी। तो वो आपका जो रात का टाइम होता है 9 बजे लेक्चर का, मैनी ऑफ द टाइम्स आई मिस इट, बट जब भी मौका मिलता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू लिसन। उसकी रिकॉर्डिंग देखिए सर, वीक में जब भी आपको टाइम मिले। जी बिल्कुल, वो तो मेरा हमेशा रहता ही है कि जब भी टाइम मिले आई शुड ज्वाइन, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग जो नॉलेज देते हैं उससे डेफिनेटली फायदा मिलता ही है।
कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो आप अपना हॉस्पिटल एक्सपेंड करेंगे और नए अपने बच्चे ऐड होंगे आपके हॉस्पिटल में, देट विल बी वेरी यूजफुल। हाँ डेफिनेटली। अब मैंने अभी आजकल हम इसको एक्सपेंशन और रिनोवेशन ही चल रहा है टोटल हॉस्पिटल का, वो सब कर रहे हैं आजकल, जिससे कि बच्चों के आने से पहले हम सब तैयारी कर लें उनके स्वागत के लिए। वेरी गुड। तो आपका ये कुछ मैसेज बताइए फॉर डॉक्टर्स न्यू कमिंग इन द फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स, कैसे अपना करियर प्लान करें? बेसिकली देखिए, मेरा सोचना ना नए लोगों से यही है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। लोग कहते हैं कि आप जो एबीसी ऑफ प्रैक्टिस है, ए इज अवेलेबिलिटी, बी इज योर बिहेवियर एंड देन सी इज योर कंडक्ट। Yeah. हाउ यू Yes. ट्रीट योर पेशेंट, हाउ यू बिहेव विद देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या है ना, नए लोग देखते हैं कि साहब शहर में फलाना बहुत बड़ा, इसकी प्रैक्टिस बहुत है, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है, और लोग ये नहीं देखते कि उसने जर्नी कहाँ से शुरू की थी Right. और उसने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करके आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। ये नहीं आप डे वन से आप जो है, देखिए कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी मैं पढ़ने बैठूंगा एबीसीडी से शुरू होगी, एमएन और ईएफ से नहीं शुरू होगी पढ़ाई, वो शुरू ए से ही होगी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आजकल नए लड़कों में देख रहा हूँ कि दे आर इन वेरी हरी कि फटाफट सब होना चाहिए सर, मुझे इतना होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए। वो थोड़ा सा कई बार उस चक्कर में बच्चे जो है ये गलत चक्कर में पड़ जाते हैं इसकी वजह से। आप सर कुछ अगर अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे, हाउ दे शुड प्रैक्टिस? मेरा सिर्फ यही सोचना है कि दे शुड वर्क हार्ड एंड दे शुड बी ऑनेस्ट विद देयर पेशेंट्स। आप ऑनेस्टली वर्क करो, खूब अच्छा काम करो, डू योर बेस्ट, डेस्टिनी विल फॉलो यू। आप किस्मत आपके पीछे पीछे भागेगी आप जितना अच्छा काम करोगे। आपको कहीं पैसे के लिए किसी के आगे मुंह नहीं फैलाना पड़ेगा, पैसा अपने आप आता है जब आप काम अच्छा करते हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड टॉकिंग टू यू। और ऐसे आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमने डॉक्टर अमित अग्रवाल की हेल्प की या फिर कैसे उन्होंने अपनी जर्नी जी है और सक्सेसफुली जी है और एथिक्स के साथ जी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ही विल गाइड यू। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स कैसे हेल्प करते हैं, प्लीज़ इस लिंक के नीचे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक वेबिनार का लिंक मिलेगा, तो ज्वाइन करिए और हेल्प ओनली ज्वाइन करना है। थैंक यू अमित सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।